Good afternoon, students. I hope you all are doing well. So let's start with chapter 7, Idea of Algorithmic Efficiency. You have already studied till chapter number 6, Recursion. I hope you all have seen that video also. If you have not, then please see the video so that you can get the clear picture of recursion concept. And after that, I sent 2-3 PDFs of some questions and some assignment. So you have not submitted the assignment till date, but please try to submit till tomorrow. So let's start with the video. Idea of efficiency is our chapter name. What is idea of efficiency? It means whatever programming language you are using, or whatever code technique you are using, how much time and how much space it is taking in execution. It is called complexity. So it is called complexity of a program. But here we are talking first about what is efficiency and what is effectiveness. A program is effective if it is working according to whatever you want to do, whatever output you want to take from the code, then it is giving to you. But what is efficiency? Is it taking the less time? If your friend is using the other code, whatever you are writing the code, you are taking more time, and your friend is using the other code, and this is taking the less time. So his code is more efficient than yours. So how will you decide which code is more efficient, which code is less efficient? So we will talk about this. So let's start. Efficient programming is a manner of programming that when the program is executed, it uses a low amount of overall resources. So obviously when we do anything, when we do study, when we do whatever we do in our life, we always try to use the minimum resources and maximum output. So in the same thing, when we do कोडिंग, देन आई ऑलवेज से कि ये ऐसे भी हो सकता है, बट इसको ऐसे करना है, या यू ऑलवेज गिव मी सजेशंस कि मैम ये इसमें 4 लाइन है, हम 2 लाइन में भी इसका आउटपुट जा सकते हैं पाइथन में. सो इट्स ओके. कोड कोई सा भी हो सकता है. कोड कैन बी एनीथिंग. यू कैन राइट मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड एंड यू कैन गेट द सेम आउटपुट. बट योर वे ऑफ, मैंने कहा कि आपको ये रिकर्जन यूज करके प्रोग्राम करना और आप रिकर्जन नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे, तो दैट इज नॉट ट्रू, बट दैट इज नॉट ओके. लेकिन अगर आपको जो कहा जा रहा है और आप वही कर रहे हैं, लेकिन उसका वे भी वही है जो हम चाहते हैं, देन इट इज ओके. तो लो अमाउंट ऑफ ओवरऑल रिसोर्सेज पर्टेनिंग टू स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर. तो आपका जो सीपीयू है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है, ठीक है, या जो मेमोरी है जिसको हम एक्चुअली मेमोरी से रिलेटेड क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड सीपीयू से रिलेटेड देन इट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग. A program is designed by a human being, and different human beings may use different algorithms, obviously, or sequences of codes to perform particular tasks. So the efficiency of such different program varies depending upon the number of resources being used. तो आप कैसे resources use कर रहे हैं उस पर आपके program की efficiency depend करती है. Practicing to create a low size, यानी कि low size mean number of lines of code आपके कम होने चाहिए, and low resource algorithm results in an efficient program. Move to next slide. परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस डिफाइंड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल क्लॉक टाइम. सो व्हाट इज वॉल क्लॉक टाइम, या इलैप्स टाइम भी उसको बोलते हैं. टाइम टू कंप्लीट अ टास्क एज सीन बाय अ यूजर. Obviously, if you are taking 5 minutes to do a task, and if you are taking 3 minutes to do a task, तो what is more efficient? Obviously it is. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ इसकी परफॉर्मेंस की, कि जितना ज्यादा टाइम आप लेंगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस लो होगी. ठीक है. इन वॉल क्लॉक टाइमिंग ऑल काइंड ऑफ टाइम इज इंक्लूडेड. अब वॉल क्लॉक टाइमिंग में क्या क्या टाइम इंक्लूड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कितना टाइम ले रहा है, और पोटेंशियली इंटरफेयरिंग अदर एप्लीकेशन. इफ देयर आर सम अदर एप्लीकेशन विच द प्रोग्राम इज यूजिंग, देन हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग. सो द टोटल टाइम इज कॉल्ड वॉल क्लॉक टाइम. What is CPU time? It does not include time slices introduced by external sources, example running other application. तो CPU time में आपका जो दूसरे एप्लीकेशन रन करते हैं वो काउंट नहीं होते हैं. Only how much time your CPU is taking is calculated. ठीक है. तो we will focus on mainly wall clock time, which computes the all kind of time which is taken by the code. Next is परफॉर्मेंस डिफाइंड एज इनवर्स. सेम थिंग व्हाट वाज रिटन देयर, बट इसको कैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे.
टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिनिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम। ऑब्वियसली मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप जितना कम टाइम देंगे परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी। तो परफॉर्मेंस इक्वल टू 1 इनवर्स का मतलब जानते हैं, उल्टा, मतलब उल्टा उसका रिलेशन होता है 1 एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, x अगर n टाइम्स फास्टर है y के, इसका मतलब एग्जीक्यूशन टाइम ऑन y इज n टाइम्स लॉन्गर देन x, यानी कि x से वो n टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि भाई x n टाइम ज्यादा फास्ट चल रहा है, इसका मतलब y n टाइम स्लो चल रहा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस x अपॉन परफॉर्मेंस y, इसका अपोजिट एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम x। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, और यहाँ y है, यहाँ x है, बिकॉज इनवर्स ही प्रोपोर्शनल होता है ना परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन के। ठीक है, इक्वल टू n वैल्यू आती है। देन हाउ वी कैन सी दैट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ अ पर्टिकुलर डेस्कटॉप रन्स अ प्रोग्राम इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, डेस्कटॉप उसको रन कर रहा है 60 सेकेंड्स में, लैपटॉप रन कर रहा है 90 सेकेंड्स में। तो डेस्कटॉप ऑब्वियसली फास्टर है, बट कितना फास्टर है, हाउ विल यू सी, 1/60 डिवाइड बाय 1/90 इक्वल्स टू 1.5। सो द डेस्कटॉप इज 1.5 टाइम फास्टर देन द लैपटॉप। सो इस तरह से आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि वो कितना फास्ट है। नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब अभी तक हमने टाइम की बात करी, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है ये सब, बट नंबर ऑफ ऑपरेशंस अ पीस ऑफ कोड इज परफॉर्मिंग। ठीक है, number of operations, to compute the number of operations in a piece of code, simply count the number of arithmetic operations plus other operations that code is performing। ठीक है, इसका भी एक तरीका होता है कि एडिशन को हमें 1 मानना है या मल्टीप्लिकेशन को 1 मानना है, फिर उनको ऐड करते जाना है कितना करते हैं। हमको एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको कभी कैसे करते हैं। All operations, addition, subtraction, multiplication and division, they are usually counted to be the same। ये माना जाता है कि whatever space or whatever time they are taking is the same। Actually it is not true because some multiplication includes several additions and division। होता है ना, एक्चुअली देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे प्लस और डिवीजन होते हैं, बट when actually executed by a computer, however we are looking for, अगर हमको एक एस्टिमेट चाहिए तो हम एक रीजनेबली एज्यूम कर। अभी एग्जांपल देखिए, r इक्वल टू 0 फॉर i इन रेंज 4, मतलब ये 4 बार लूप चलेगा। फॉर n इन रेंज 4 तो ये भी 4 टाइम्स चलेगा। r इक्वल टू r प्लस i इंटू n। अब देखिए हर बार r के लिए एक मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, एक एडिशन होगा और एक इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा, मतलब 3 ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं। और ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार ये और 4 ही बार ये, तो 4/4। ठीक है, सो देयर आर 4/4 इंटू आर ऑपरेशंस। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोड। इन दिस एग्जाम्पल इट इज बिग O 4 स्क्वायर आर। अब ये आप कहेंगे बिग O क्या है, बिग O नोटेशन मतलब ये 4 इंटू 4 बार ये आर चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आर बिग O क्या होता है, बिग O नोटेशन बताऊंगी इसमें आगे। तो ये देखो, मेजर द टाइम कितना लग रहा है वो आप एक्चुअली कैसे देख सकते हैं। उसके लिए टाइम बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल होता है, टाइम फंक्शन, जैसे आपने और सारे फंक्शन यूज किए हैं। इन द सेम वे यू कैन यूज टाइम फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ सेकेंड्स elapsed सिंस द इपोक, यानी कि प्रोग्राम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक हाउ मच टाइम दिस इज टेकिंग, दैट यू कैन कैलकुलेट यूजिंग टाइम फंक्शन। यू डोंट हैव टू मैनुअली कैलकुलेट, you can't actually, and you have to use only time function. So for this function you have to import time module, then you can use time.time function, and in the same thing for I in range 400 अब इसमें 400 into 400 इतनी बार चलेगा ये, एंड इक्वल टू टाइम। देखो आपने एक स्टार्ट लिया है टाइम और एक एंड लिया है, और आपने देखा लास्ट में एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आउटपुट आपका ये आया है। देखिए जो प्रिंट होगा ना आपकी आर वैल्यू जो है वो ये आर वैल्यू है, ये तो आपका आउटपुट है। और ये जो है व्हाट इज दिस, प्रिंट इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट, क्योंकि ऑलवेज वी नो वेन एवर वी गिव द प्रिंट स्टेटमेंट ओनली देन द आंसर इज कमिंग। सो प्रिंट स्टेटमेंट इज व्हाट इज गिविंग दिस एंड माइनस स्टार्ट। तो एंड कैन बी एनी वैल्यू, स्टार्ट कैन बी एनी वैल्यू, वॉट एवर द CPU इज गिविंग। अब इसको जो माइनस करके वो वैल्यू आई है, इट मीन्स इट इज द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द पाइथन स्क्रिप्ट। ये कमेंट है, ठीक है, हैशटैग लगा हुआ है, हैश लगा हुआ है, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द पाइथन स्क्रिप्ट। तो इतना टाइम इसको एग्जीक्यूट करने में लगा है। नेक्स्ट
कंपेयर प्रोग्राम, अब प्रोग्राम भी आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली। देखिए ये प्रोग्राम है, इसमें भी एक स्टार्ट दिया है, इसमें एक एंड दिया है और ये इसका आंसर आया है। इन द सेम वे यहाँ पे एक स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। दिस इज द सेम प्रोग्राम ऑफ प्राइम नंबर, बट एक्चुअली वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग कंसेप्ट इन बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो ये इसमें इतना टाइम लगा, इसमें इतना टाइम लगा, इट मीन्स इट इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इट इज टेकिंग लेस टाइम। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि whenever you are doing the same program using two different codes, then if you write this start and print statement, then you can easily know which program is using less time and which program is using more time. Next is, देखिए मैंने जो अभी तक बताया आपको वो मैंने कहीं एक पीडीएफ बहुत अच्छे से जो कवर था, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें अच्छे से जो बेसिक कंसेप्ट आपका कवर हो रहा था वो मैंने आपको ये कि बताया। अब आपकी बुक में जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। वहाँ पे एक टर्म दी हुई है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, एक्चुअली मैंने आपको बता दिया है पर फिर भी आपको फिर से प्रॉपर वे में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज कंप्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटेशन मीन्स प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड एंड द एल्गोरिथम्स टू सॉल्व देम। तो जो आप कोड लिख रहे हैं ना वो आपका कंप्यूटेशन हो गया। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फैक्टर्स टू डिटरमाइन हाउ मच रिसोर्स इज सफिशिएंट और नेसेसरी फॉर दिस एल्गोरिथम। अब आपने कोई एल्गोरिथम लिख लिया, कोड लिख लिया और इसके लिए कितने रिसोर्स लगेंगे वो आपकी हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और उसी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे यू कैन डिफाइन और यू कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कोड। रिसोर्सेज में क्या कह सकता है, टाइम एंड स्पेस। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, आई एम फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू द टू थिंग्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम टू रन द एल्गोरिथम, टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं उसको, स्पेस कितना लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम की आपको बताया टाइम फंक्शन यूज करते हैं और स्पेस के ही आपको बिग ओ करके कुछ बताया था कितना स्पेस लगेगा, वो भी आगे बात करेंगे, ठीक है। First thing to take into account is the difference between efficiency and effectiveness that I have already discussed. Effectiveness, algorithm carries out its inherent functions correctly. It means whatever we want to do with the function, it should do. But efficiency कि वो कितने best possible performance में कर रहा है, उसके लिए आप complexity determine करते हैं, ठीक है। Big O notation क्या होता है, ये आपके algorithm की growth rate को डिपिक्ट करता है। ग्रोथ रेट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस को व्हेन इट्स इनपुट साइज ग्रो। अब इनपुट आपका वो आर था ना वहाँ पे इनपुट, तो उसको जैसे जैसे जो इनपुट आता जा रहा है उसके बेसिस पे उसकी ग्रोथ कैसे कैसे या कितना वो स्पेस लेगा वो आपको बता दें। थ्रू बिग ओ द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड इफ बी, मतलब इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम दिस टाइम इट कैन टेक। So if we say an algorithm takes big O n square time, this means that this algorithm will carry out its task taking at the most n square steps। यानी आपने अगर n इनपुट दिया है तो at the most ज्यादा से ज्यादा ही n square steps लेगा, इससे ज्यादा steps इसमें यूज नहीं होंगे। The big O notation is very useful for comparing the performance of two or more algorithms, ठीक है। If we have two algorithms and one has complexity big O n square, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे वहां पे थी ना 4 into 4 या कुछ भी, r square भी, other has complexity 2 to the power n। So अब कंपेयर करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर n है, आपने जो n की वैल्यू दी है 10 दी है, 20 दी है, 40 है, 100 है, 400 है। तो अब इसमें क्या पता चल रहा है आपको, आप देखिए इसमें मोर द नंबर ऑफ स्टेप्स मोर इज द टाइम टेकन एंड लेस इज द परफॉर्मेंस। जितने नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा और उतना ही कम उसकी परफॉर्मेंस होगी। जैसे n 100 था तो टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम, अब देखो इसमें कितना, यह 1 इतने स्टेप्स ये, सॉरी 100 के देखना है, हाँ तो इतने ये, ठीक है, लेकिन इसने इतने ये, तो क्या होगा कंपेयर टू ये इसमें इतने है, तो ये जो है एक्चुअली ये इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। Thus you can say that performance of algorithm is inversely proportional to the wall clock time। अभी पढ़ा हमने, जितना टाइम ज्यादा उतना ही परफॉर्मेंस कम। तो समझ में आ गया आपको परफॉर्मेंस। अब आप इसमें आराम से देख सकते हैं, पूरा इसका कर सकते हैं कि ये जो है ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और ये लेस परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको पता ही है। प्रोग्राम्स विद अ बिगर ओ रन स्लोअर देन प्रोग्राम्स विद अ स्मॉलर ओ।
नेक्स्ट थिंग देखिए, इसमें 2-3 चीजें देखेंगे हम, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज। अब समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। बेस्ट केस मीन्स इट इज टेकिंग लेसर टाइम, सबसे कम टाइम जिसमें लग रहा है। एवरेज केस जो एवरेज टाइम लग रहा है, और वर्स्ट केस जहां सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है और सबसे कम परफॉर्मेंस आपकी आ रही है। तो ये बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। या आपकी इनपुट साइज यहाँ दी जा रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स आप कितने देंगे वो ये बढ़ते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू केस। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इज द फंक्शन डिफाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बताता है व्हाट कैन बी योर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। अब बेस्ट केस में देखिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने देंगे, ठीक है। एंड एवरेज केस में क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब कैसे निकालते हैं, व्हाट इज बिग ओ, कैसे कैलकुलेट होता है वो आप देखेंगे। सबसे पहले हम लीनियर सर्च का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद एक बाइनरी सर्च का करेंगे। या आपने लीनियर सर्च का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कैसे कर रहा है, यहाँ पे n इक्वल टू, ये देखिए ये जो हम हर स्टेप्स के लिए बिग ओ की टाइम निकालते हैं, कितना टाइम लगने वाला है। i इक्वल टू 0, n इक्वल टू n था, तो इसके लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। इसका कांस्टेंट टाइम हमने मान लिया, कांस्टेंट टाइम है c0, ठीक है। अब ये देखिए i लेस देन n एंड x नॉट इक्वल टू a RRI। इसमें क्या है, ये वाला जो है आपका वो आपका कोई कांस्टेंट टाइम है c2, ठीक है। एंड ये वाला आपका कांस्टेंट टाइम ये रहा है c1, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, पर ये c1 है, ये c2 है, ये c0 है। ये क्या कह रहा है, लूप रिपीट्स मैक्सिमम एन टाइम। अब देखिए जब तक ये n से कम रहेगा तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। इट मीन्स ये n टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। और i इक्वल टू i प्लस 1 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे c3। अब इफ i लेस देन n, ये वाला जो आपका एक स्टेप है वो आपका कांस्टेंट टाइम रहेगा c4। रिटर्न करना है i, इसके लिए भी कांस्टेंट टाइम हो गया c5। डन आएगा c6, ठीक है। अब टोटल टाइम टेकन, अब इसमें पूरे प्रोग्राम में कितना टाइम लगेगा वो आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो गया c0, फिर यहाँ पे पूरे लूप के अंदर था c1, c2, c3, ठीक है। तो ये देखिए c1, c2, c3, पर ये n टाइम्स रिपीट होगा। इट मीन्स वी हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय n। देन दे आर नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ, दे आर जस्ट कांस्टेंट टाइमिंग, सो c4, c5 एंड c6। सो नाउ व्हेन बी टोटल इसका करते हैं तो ये c0 हो गया प्लस n, और यहाँ पे कैपिटल C1 आपने किया है, जिसमें c0 की वैल्यू हमने मानी है, जो पूरा टोटल है वो हमने कैपिटल C0 कर दिया, और यहाँ पे जो C1 है वो हमने ये पूरा कैपिटल C1 ले लिया, ठीक है। देख रहे हैं आप, स्मॉल था यहाँ पे कैपिटल हो गया। तो एक्चुअली क्या है, इनमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो ये मटेरियल फैक्टर है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसका जो डोमिनेंट टर्म होगा, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितने टाइम लग सकता है, ये हो गया बिग O n टाइम। ऐसे ही आप बाइनरी सर्च का देखेंगे। अब इसमें बाइनरी सर्च का देखेंगे आप, बाइनरी सर्च आपको पता ही है, एक मिडिल वैल्यू लेते हैं, फिर अगर उससे कम होती है तो कहाँ देखना है, ठीक है, और उससे ज्यादा होता है तो कहाँ देखना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च के लिए ये देखिए यहाँ से शुरू किया, एक फंक्शन लिया, ये लो इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर -1, द सेम वे ये c0 और ये c1 हो गया, ठीक है। वाई लो लेस देन इक्वल टू हाई, ये भी एक कांस्टेंट टाइम मिलेगा, ये c2 हो गया। मिड इक्वल टू इंट लो प्लस हाई बाई 2, ये मिड वैल्यू निकाली, ये भी एक कांस्टेंट टाइम मिलेगा। इफ की इक्वल टू AR ऑफ मिड, कांस्टेंट टाइम c4, ये रिटर्न करेगा c5, c6, c7 एंड c8 एंड c9। सिंगल जहाँ स्टेटमेंट होते हैं, जो सिंगल एक लाइन को एग्जीक्यूट करना है, वहां आपका कांस्टेंट टाइम लगता है। बट इसमें क्या लिख रहा है, लूप रिपीट्स मैक्सिमम log n बेस 2 टाइम बिकॉज एवरी टाइम सेगमेंट बिकम्स हाफ इन साइज। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप बाइनरी सर्च करते हैं तो पहले आप मिडिल वैल्यू देखते हैं, फिर इससे ऊपर की वैल्यू, अगर इससे जो आपको वैल्यू चेक करनी है, अगर वो इससे छोटी है तो वो आप इधर की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो फिर इससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब ये हाफ हो गया। फिर इसमें भी आप मिड वैल्यू सेम निकालेंगे, फिर हाफ हो गया, क्योंकि वाइल लूप देख रहे हैं ना आप, तो फिर हाफ हो गया, फिर वापस हाफ चलता ही जाएगा सर, तो बार बार हाफ साइज होती जाएगी। तो ये मैक्सिमम log n बेस 2 टाइम चलेगा। तो टोटल टाइम टेकन देखिए c0 हो गया, c1 हो गया, फिर ये जो पूरा लूप था c2 से लेके
फिर यहाँ से लेके और पूरा C8 तक, यहाँ तक, क्योंकि ये तो लूप से बाहर है नन वाला, तो ठीक है। तो ये पूरा आपका चलेगा मैक्सिमम log n बेस 2 टाइम, ठीक है। तो इसी तरह सेम जो तीनों चीजें थी इसको ऐड करके C0 कर लिया, ये C1 हो गया और ये हो गया। तो बिग O log n बेस 2 ये इनका डोमिनेंट टर्म हो गया, या मैक्सिमम इतनी बार ये चल सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। बुक में भी आपके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल हैं, अगर बुक है आपके पास तो उसमें से पढ़ सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ रखा है कि यू कैन कंपेयर द सिलेबस व्हाट वेयर वी हैव रीच्ड एक्चुअली। तो ये आपका प्रीवियस सिलेबस, ये इस साल का सिलेबस है। पहले 30 मार्क्स की यूनिट थी, अब 40 मार्क्स की होगी, जिसके अंदर आपका रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन, नो चेंज। फंक्शंस आपको पढ़ा दिए पूरे मैंने, नो चेंज। फाइल हैंडलिंग आपको पढ़ा दी है, उसमें ये सारी चीजें थी, डंप, लोड, CSV फाइल, ये सब मेथड, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। देन यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ा दिया है, इसमें भी नो चेंज है। रिकर्जन आपको पढ़ा दिया है, जिसमें देखिए इसमें फिबोनाची नंबर है, रिकर्जन ऑन एरे, बाइनरी सर्च, फैक्टोरियल। तो ये जो कुछ कुछ चीजें हैं वो नो चेंज, मतलब पिछली बार जो था सेम वही मैंने आपको 3 मेन बताए थे, और उसके अलावा कुछ और भी भेजे हैं एग्जाम्पल। तो आई थिंक दे विल बी मोर देन सफिशियंट। Then idea of efficiency, performance defined inversely proportional to wall clock time, count the number of operations, ये आपको बताया अभी कैसे काउंट करते हैं, measure the time कैसे काउंट करते हैं टाइम फंक्शन से, दो डिफरेंट प्रोग्राम लेके और उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, वॉट एवर प्रोग्राम इज टेकिंग लेस टाइम और मोर, तो वो मैंने आपको बता दिया टाइम फंक्शन के थ्रू, इसमें भी नो चेंज। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास चीज नहीं है, जो आपका पहले था वही अब है, वो सारी चीजें बता दी है। डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाई प्लॉट, ये पिछली साल था चैप्टर नंबर 8 जो आपका है, लेकिन इस साल ये कम्प्लीटली डिस्कार्डेड है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड इट, टोटली डिस्कार्डेड है वो। डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, स्टैक, ये क्यू जितना छोटा आपको दिख रहा है उतना ही बड़ा ये है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, 10, 11 काफी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, इसके अंदर बहुत कुछ आपको पढ़ना है। लिस्ट, स्टैक और क्यू, लिस्ट जो आपने 11th में पढ़ी थी वो है, तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन स्टैक और क्यू टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आपको इस साल पढ़ना है। तो टॉपिक तो आपका ये हट गया है, कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ था फाइल हैंडलिंग में, लेकिन आपका ये 30 से 40 मार्क्स की यूनिट बन गई है। सो यू कैन रियलाइज द इम्पोर्टेंस इन 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स का आपका क्या है, ये वाली यूनिट है, तो आपको कितने अच्छे से ये यूनिट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप यू आर ऑल आर एंजॉइंग द लर्निंग, यू शुड learn because it is time, it is very difficult time for all of us, but फिर भी we are trying our best। होपफुली नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट से, तो यू शुड बी रेडी विद इट। आई नो यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ limitations in the resources, but at least you should try। आप फोन पे भी ट्राई कर सकते हैं, you will have to try, actually you don't have options only and we also don't have option this time। सो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, इनको डाल लीजिए अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, या जिसमें भी टैबलेट में जो भी आप यूज़ करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।